कार्टून। चलिए, so now let's start our topic. So we will be discussing the muscular tissue. ठीक है। now muscular tissue का origin क्या है? The origin मेसोडर्मल। is mesodermal. Okay, the origin is mesodermal, मतलब ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना हुआ है। एंड तो अब in case of muscular tissue, basically we have three different types of tissues. So before going into the detail of the differentiation between tissues, first we will study the most important tissue with respect to your syllabus. So that is called your skeletal muscles. Okay, skeletal muscle tissue. Okay, it's very important part. This is called skeletal muscle tissue, and we know we have two more types of muscular tissue. So that is the concept. तो इसीलिए हम लोग पहले skeletal muscle tissue अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे जाके आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होगा। See, another unfortunateness, generally I don't teach tissues separately, I had already told you, but अभी unfortunateness क्या है, that आपको उस दिन तक इसको याद रखना पड़ेगा। Okay, so अगर आप भूल गए तो again we will be wasting another day, so you have to remember it till that day. चलिए, तो in case of skeletal muscle tissue, as the name suggests, okay, तो as the name suggests, this type of muscular tissue is associated with the skeleton, and is responsible for the movement and locomotion. ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारा उसका मेन कंसेप्ट है। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू हायर एनिमल्स, it is the most important muscular tissue, या हम कह सकते हैं it is the most important muscular tissue as its load is much higher, much higher than any other muscles, है कि नहीं? Now इसको इधर नहीं लिखेंगे। In higher animals, it is the most important muscular tissue with respect to load. Okay, load, as it is much higher than any other muscles. For example, क्या? जो cardiac muscles work with the heart, which is nearly 150 to 200 grams only, है कि नहीं? तो इसका लोड देखो। Visceral muscles work, visceral muscles help
in the contraction of organs that are less than 1 kg. But the skeletal muscles need to move the whole organism. Okay, like a 70 kg man, okay, nearly 200 kg buffalo, and nearly 1000 kg plus elephant, ओके एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है अगर आप लोड देख लो तो सबसे ज्यादा काम किसका होता है? स्केलेटल मसल। skeletal muscles. ठीक है, तो अभी देखो जी, सिंस हम सेल से उठ के आए हैं, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, the cytological details differs in all the three muscles. Okay, in all differs in all the three types of muscles. है कि नहीं? तो इसमें तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क द साइटोलॉजिकल डिटेल्स डिफर्स इन ऑल द थ्री टाइप्स। तो अब हम लोग जा रहे हैं, सिंस वी आर गोइंग फॉर स्केलेटल मसल, तो इन स्केलेटल मसल्स, ओके, इन स्केलेटल मसल्स, okay, in skeletal muscles the most important cellular component is the most important and most abundant cellular component is क्या? The most abundant cellular component is microfilament. filaments. ओके, इसको हम लोग मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। ओके, मायोफिलामेंट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट abundant component is the SER, इसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। क्यों? एज, इसका कारण क्या है? एज इट, ओके, एज सार्कोप्लाज्मिक, एज इट is responsible for storage of calcium, है कि नहीं? तो सिंस SCR कैल्शियम स्टोर है तो इसलिए वो नेक्स्ट अबंडेंट है। ठीक है जी। नाउ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्पेस, these cells lack, okay, yeah, these cells are deficient in क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोसोम्स। ओके, सो skeletal muscles generally respire क्या? anaerobically and accumulate
lactic acid, है कि नहीं? Now this lactic acid accumulated results in pain या fatigue. ठीक है जी, तो जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा उतना ज्यादा दर्द या आपको पेन या फैटिग होगा. ठीक है ना? In order to attain strength, these cells have united to form a syncytium. एक्चुअली मसल्स में हम लोग सिंसिशियम यूज करते हैं, आपका बॉटनी में जो मर्जी लिखा, आई डोंट बॉदर. है ना, बहुत बुक्स में उसको सिनोसाइटिक लिखा होता है. ठीक है जी सर. So in order to attain strength, these cells have united to form a syncytium. And syncytium क्यों? By loss of septa valves between the cells. है. These are hence multinucleated. है क्या ना? So these are hence multinucleated. Full stop. Other organelles play not so important roles. Okay, other organelles play not so important roles. तो इसलिए उसका हम बॉदर नहीं करते हैं. तो इसलिए जब भी हम लोग मसल स्केलेटल पढ़ेंगे तो वी विल बी बेसिकली रीडिंग अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, वी विल बी रीडिंग अबाउट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी विल बी रीडिंग अबाउट डेफिशिएंसी. ओके, वी विल बी रीडिंग अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ सार्कोसोम्स, वी विल बी रीडिंग अबाउट accumulation of lactic acid, we will be reading about syncytial condition by loss of septa, and they are multinucleated. ठीक है जी. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू द मसल. नाउ अब हम लोग चलेंगे तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल. ओके, cross section of a skeletal muscle. Very important topics. Okay, please be very serious. Students of my section in the school, they have already done this. तो जो लोग अदर स्कूल या सेक्शंस वाले हैं वो थोड़ा इधर अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये हम थोड़ा सा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, है कि नहीं? तो अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, okay, the outermost, okay, layer of the muscle is referred to as क्या? Sarcolemma. The outermost layer of the muscle is referred to as क्या? The epimysium. ओके, देख रहे हो, सब भूल जा रहे हो. ए कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ए कनेक्टिव टिश्यू ब्रैकेट रे WFCT. फाइन. तो इट is a strong connective tissue and helps in the maintenance of maintenance and helps in the maintenance of the
It is a strong city and helps in the maintenance of the muscle. ठीक है? So it prevents the WFCT क्या होता है? it prevents the muscle from क्या? It prevents the muscle from injury. Okay? Now WFCT का मतलब होता है white fibrous connective tissue. connective tissue. ओके, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग WFCT ही बोलते हैं। क्लियर? तो एक्चुअली क्या है, आप जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, यू आर पुलिंग दोज मसल्स, तो वो फट जाएगा, है कि नहीं? सपोज यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द मसल, तो वो टूट सकता है ना। इसीलिए द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहते हैं एपिमाइसियम। तो वो उसके कवर को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है जी, चलिए तो अब उसी का ड्राइंग हम बनाते हैं। क्लियर? सो सपोज हम लोग उसका ड्राइंग बनाएंगे, तो सपोज वी विल मेक अ एपिमाइसियम। सो दिस इज ए मसल। ठीक है, ये पूरा का पूरा मसल है, एंड उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? सो दैट इज ए एपिमाइसियम। ये आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अब इस एपिमाइसियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ व्हाट? These are called fasciculus. ये हो रहा लिखा, कलर पुअर। तो उसमें बहुत सारा इस तरह से fascicles होगा। So these are what? These are bundles of, these are called fascicles. ठीक है, तो ये ऐसे fascicles होंगे, बहुत सारे fascicles होंगे। क्लियर? अब ये जो fascicle है, इसका आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? सो दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। ठीक है, तो ये पेरीमाइसियम है। ओके, तो ये आपका पेरीमाइसियम है। फाइन, सो दीज आर पेरीमाइसियम। समझ रहे हो? दिस होल रेड इज एक्चुअली एपिमाइसियम। इसमें बंडल्स होते हैं, these bundles are called fasciculus, and fasciculus का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, so that is called the perimysium. अब उस fascicle के अंदर आप बहुत सारे क्या पाएंगे? You will find a lot of, okay, you will find lot of muscle fibers. ऐसे बहुत सारा चाहिए, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता है, नहीं तो और जल्दी हो जाता है। तो सपोज ये आपका एक मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर को ही एक सेल बोलते हैं। ठीक है, अ मसल फाइबर इज रेफर्ड टू एज ए सेल। फाइन, इस तरह से आप बहुत सारे आप ऐसे गोले बना सकते हो। सो दीज आर, ये पूरा टाइट पैकिंग होगा। ओके, देयर इज नो स्पेस। अब उतना बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है।
फाइन। तो ये सब क्या हैं? दीज आर मसल फाइबर्स। एंड ये जो मसल फाइबर है, इसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। ठीक है जी। सो दीज आर एंडोमाइसियम। देख रहे हो? तो दिस ब्लू लेयर्स आर एंडोमाइसियम। हो गया? चलिए, सो लेट्स लेवल दैट। सो व्हाट इज दिस? ओके, ये हो या ये अंदर भी आने से चलेगा? ओके, सो ये है, ये इसको ऊपर ले लेते हैं। ये है, फाइन। तापरे ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये ब्लू वाला है। ओके, ये ब्लू वाला है, एंड सो ऑन। तो जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मसल। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मसल। ये पूरा मसल है। ओके, दिस इज मसल। नाउ ये क्या हो गया? दिस इज एपीमाइसियम। ओके, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ब्रैकेट में WFCT। इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर WFCT। अब टाइम देखते रहो। तापरे हम लोग चेंज करेंगे कलर। तो दिस इज व्हाट? तो ये आपका है मसल फैसिक्यूलस। सिंगुलर है मसल फैसिक्यूलस, प्लूरल है फैसिकल। तो उसको कौन रैप किया? सो दैट इज द एंडोमाइसियम। है क्या? पेरीमाइसियम। सो दिस इज पेरीमाइसियम। ओके, ये जो है, सो दीज आर मसल फाइबर्स या स्केलेटल मसल सेल्स। तो इसको हम लोग मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल्स बोलते हैं। एंड ये है एंडोमाइसियम। ओके, सो ये जो डायग्राम है, सो दिस डायग्राम इज आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल। ठीक है, अब इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं, बट वो हम फोटोग्राफ देखकर बना लेंगे, क्योंकि उतना इधर स्कोप नहीं होता है काम करने के लिए, कलर भी उतना है नहीं। ओके, कोई शक? तो ये आपको मैं इधर क्रॉसिंग कर देता हूं, तो आपको पर्टिकुलर चीज पता चलेगा। ये एंड ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दिस इज द स्केलेटल मसल सेल। ठीक है, चलिए, सो यू कैन आस्क सम डाउट्स इफ यू वांट। आई एम एंडिंग द